خوش آمدید. میں محمد عمران آپ کی نصابی کتاب کے سبق نمبر 20 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. سبق ہماری غزل ہے اور فراق گورکھپوری کی لکھی ہوئی یہ غزل ہے. ہم سبق کے مطالعے سے پہلے، غزل کے مطالعے سے پہلے فراق گورکھپوری کی زندگانی کے حوالے سے معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے بعد خصوصیات کلام اور طرز تحریر کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم غزل کا مطالعہ کریں گے، غزل کا مفہوم سمجھیں گے اور تشریح کریں گے اشعار کی کہ شاعر اس غزل میں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. تو شروع کرتے ہیں ہم. فراق گورکھپوری کی لکھی ہوئی غزل ہے. فراق گورکھپوری کا اردو ادب میں بہت بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے. غالب اور حالی کے انداز کا میر کا جب نام لیا جاتا ہے تب ساتھ ہی غزل گوئی کے لیے فراق گورکھپوری کا نام بھی لیا جاتا ہے. نئی طرز کی، نئی انداز کی آپ نے غزلیں لکھی. جدید غزلوں کے شعراء کے طور پر آپ کا نام ہے، آپ جانے جاتے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں سادہ زبان کے اندر، آسان زبان کے اندر آپ نے اپنی غزلیں کہیں. تو اردو غزل کا ذکر چھڑتے ہی میر، غالب اور فراق کا نام غزل سننے پڑھنے والوں کے ذہن میں فوراً آ جاتا ہے. یعنی میر اور غالب کی طرز کی آپ نے غزلیں لکھی. جس طرح سے میر اور غالب اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہیں، اسی طرح فراق بھی اپنی غزل گوئی کے لیے مشہور ہیں. یہاں طرز کا مطلب وہ انداز نہیں ہے، انداز ان سے جدا ہے، ان سے الگ ہے، لیکن نئے انداز کی بہت خوبصورتی سے غزلوں کے لیے یہ لکھی گئی غزلوں کے لیے یہ جانے جاتے ہیں. تو جس طرح سے میر تقی میر اپنی غزلوں کے لیے مشہور ہیں، غالب اپنی غزلوں کے لیے مشہور ہیں، اسی طرح سے فراق گورکھپوری بھی اپنی غزلوں کے لیے مشہور ہیں. فراق گورکھپوری 1896 میں گورکھپور میں پیدا ہوئے. فراق گورکھپوری کا نام رگھوپتی سہائے تھا اور تخلص ان کا فراق تھا. اصل نام آپ کو ان کا ضرور یاد رکھنا ہے. رگھوپتی سہائے ان کا نام تھا اور فراق ان کا تخلص تھا. تخلص شاعر شاعری کے لیے اپنے نام کے علاوہ ایک جداگانہ نام رکھتا ہے، مختصر نام رکھتا ہے، اور شاعری کے اندر اس نام کا وہ استعمال کرتا ہے. تو شاعری کے لیے جو چھوٹا اور اختصار کے ساتھ نام رکھا ہوتا ہے اس نام کو تخلص کہتے ہیں. ہر شاعر اپنا ایک تخلص رکھتا ہے، جیسے غالب، میر، یہ سب ان کے تخلص ہیں. اسد اللہ خان نام ہے اور غالب تخلص ہے. میر تقی نام ہے، میر تخلص ہے. سبھی شاعر جو شاعری کرتے ہیں اپنا ایک تخلص اختیار کرتے ہیں اور پھر اس تخلص کو اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں. تو فراق ان کا تخلص تھا. انہیں جدید اردو غزل کا ایک ستون مانا جاتا ہے. جدید اردو غزل، نئے طرز کی، نئے انداز کی غزل. فرسودہ جو انداز، کلاسیکی جو غزل تھی، پرانی جو غزل تھی، اس کا انداز الگ ہے، اس کا طریقہ الگ ہے، اس میں الگ طرح کے ترکیبیں استعمال کی جاتی ہیں، الگ طرح سے غزلیں کہی جاتی ہیں. اور جو نئے انداز کی غزل ہے ان کا طریقہ الگ ہے، لکھنے کی ترکیبیں، لکھنے کا انداز، موضوعات، یہ سب پرانے انداز سے، کلاسیک انداز سے الگ ہیں. بچپن سے ہی آپ شعر کہنے لگے تھے. انہوں نے الہ آباد میں تعلیم حاصل کی، اردو فارسی میں مہارت حاصل کی، اور الہ آباد یونیورسٹی میں ہی آپ انگریزی کے استاد تھے، اور یہیں سے 1950 میں ریٹائر ہوئے. انڈین نیشنل کانگریس کے اندر 1922 سے 1927 کے دور میں شامل ہوئے اور جواہر لال نہرو کے ساتھ کچھ مدت تک کام کیا، اور تحریک آزادی کے سلسلے میں جیل بھی گئے. ایک شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ آپ تحریک آزادی کے حصہ بھی رہے. جنگ آزادی کے اندر آپ نے بھاگ لیا اور اس کے اندر آپ جیل بھی گئے، انگریزوں کا سامنا آپ نے کیا، اور بڑی جدوجہد کے ساتھ، بڑی گرماہٹ کے ساتھ آپ نے آزادی کی لڑائی کے اندر حصہ لیا. جواہر لال نہرو کے ساتھ آپ شانہ بہ شانہ کھڑے رہے. فراق گورکھپوری نے غزلوں کے علاوہ تنقیدی مضامین بھی لکھے، نظمیں اور رباعیاں بھی لکھی، اور ان کی رباعیوں کے مجموعے کا نام روپ ہے. آپ نے تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں. تنقیدی مضامین شعراء کی تخلیقات کے اوپر یا مصنفین کی تخلیقات کے اوپر، چاہے وہ شاعری کے اوپر ہو یا نثر کے اوپر ہو، ان کے اوپر تنقیدی جائزہ پیش کرنا، یعنی اس کلام کی اچھائی اور برائی ظاہر کرنا. الگ الگ شعراء کے آپ نے کلام کا انتخاب کیا اور ان کے اوپر آپ نے تنقیدی مضامین لکھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے جو آپ نے لکھے ہیں کلام. اس کے علاوہ نظمیں اور رباعیاں بھی آپ نے لکھی ہیں. رباعی 4 مصروں کے اوپر مشتمل نظم کو رباعی کہتے ہیں. رباعی کے لیے ایک خاص بحر مقرر ہوتی ہے، اس بحر میں ہی رباعیاں کہی جاتی ہیں. تو اردو ادب کی صنف سخن ہے، بہت خوبصورت صنف ہے، اور نصیحت وغیرہ کی باتیں اس صنف کے ذریعے کہی جاتی ہیں. تو رباعیاں لکھی اور رباعیوں کا ایک مجموعہ جمع، یعنی بہت ساری رباعیوں کو ایک کتاب کی شکل انہوں نے دے دی، اور اس کتاب کا شکل، اس مجموعے کا نام روپ ہے. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ ان کی شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے.
मसलन रूह कायनात, रमज़ो कुनायात, गज़लिस्तान, शबनमिस्तान और गुल नगमा वगैरह। उर्दू शायरी में कमाल हासिल करने के दौरान, कमाल करने और उनके मकबूलियत को देखते हुए 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड से आपको नवाजा गया। अब ये आपके एजाज़ात हैं, अवार्ड्स हैं, जो एजाज़ आपको मिले। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 1960 में आपको मिला। 1968 में हुकूमत हिंद का एक बड़ा अवार्ड पद्म भूषण भी मिला, और इसके अलावा इंतकाल से चंद महीने पहले 1982 में उन्हें मोदी गालिब इनाम भी पेश किया गया। इन इनामात के अलावा उन्हें गोखले मेडल, सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड, गालिब अवार्ड और 1970 में मुल्क का काबिल कद्र अदबी अवार्ड ज्ञानपीठ अवार्ड भी आपको मिला। तो उर्दू अदब में और अदब की जो खिदमत है उसके एतराफ़ में इनको इतने बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया है। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर थे। अब जिंदगानी के हवाले से मालूमात हासिल करने के बाद उनकी फ़नी खुसूसियात के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उनकी तर्ज तहरीर और कलाम का अंदाज क्या था वो यहाँ पर दिया गया है। बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर थे, लेकिन सिर्फ गज़ल तक महदूद नहीं रहे। उन्होंने नज़्में, रुबाइयात और मज़ामीन भी लिखे हैं। उन पर अंग्रेज़ी के रूमानी शायरों और संस्कृत क्लासिकी शायरों का गहरा असर है। फिराक ही वो शायर हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर अपनी शायरी में हिंदुस्तानियत पर जोर दिया। हिंदुस्तानियत, हिंदी, हिंदू, इस तरह के मौज़ूआत आपकी शायरी के अंदर खुलकर सामने आए। आपने संस्कृत और हिंदी के आसान ज़ुबान वाले अल्फाज, खुशनुमा अल्फाज का इंतखाब किया और उनको आपने उर्दू शायरी के अंदर शामिल किया। इसके बाद हिंदी तहजीब, हिंदुस्तानी तहजीब, हिंदुस्तानी और हिंदू कल्चर की आपने बड़ी खूबसूरती से उर्दू गज़लों के अंदर अक्कासी की। गज़लों के अंदर आपने बहुत खूबसूरत तरीके से हिंदू तहजीब को दिखाया है, हिंदू तहजीब को दिखाया है। तो पहले आप ऐसे शायर हैं जिन्होंने हिंदुस्तानियत के ऊपर जोर दिया, इसीलिए इनके लिए कहा जा रहा है कि आपने अपनी गज़लों में हिंदुस्तानियत पर जोर दिया। हुस्न व इश्क, इंसानी ताल्लुकात और बिलखसूस हिंदुस्तानी जमालियात उनकी शायरी के मौज़ूआत बने हैं। फिराक ने अरबी और फ़ारसी के मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने के बजाय उर्दू शायरी में हिंदी के बहुत से अल्फाज बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किए हैं। हिंदी और संस्कृत अल्फाज और खुशनुमा अल्फाज जो सुनने में अच्छे लगे, बड़ी खूबसूरती से आपने अपनी गज़लों के अंदर शामिल किए हैं। तो नई तर्ज की, नई अंदाज की आपकी गज़ल हैं, सोचो फिक्र के ऊपर डूबने के अंदर मजबूर करती हैं। सीधी बात, रवानगी आपकी गज़लों में पाई जाती है। बनावट और बनावटीपन आपकी गज़लों के अंदर नहीं मिलता। सच्चे मौजू मिलते हैं, सच्चाई और हकीकत आफरीनी आपकी गज़लों के अंदर मिलती है। यहाँ पर इश्क तो उनकी शायरी की रूह है, यानी वो इश्क की बातें तो करते हैं लेकिन फहाशी के साथ नहीं करते। इश्क को आप जज्बात के साथ अक्कासी करते हैं। इंसान की नफ्सियाती साज को आप इश्क के ज़रिए दिखाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस मौजू पर उर्दू में इश्क़ शायरी की उन्वान से एक तनकीदी किताब भी लिखी है, और उस तनकीदी किताब में आपने इश्क़ शायरी की अच्छाई और बुराई और लिखने के तरीके बताए हैं कि किस गज़ल को अच्छी कही जाएगी और किस तरह के मौज़ूआत के ऊपर लिखी हुई गज़ल को बुरी कही जाएगी। गज़ल की खासियत और उसकी जो कमियां होती हैं उनको आपने इस तनकीदी किताब में ज़ाहिर किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत से तनकीदी मज़ामीन भी लिखे जिनके मजमूए का नाम अंदाज़े हैं। फिराक की शायरी में बातचीत का अंदाज, दिल नशीनी और तहदारी के अलावा मौसीकियत ज़्यादा पाई जाती है। मौसीकियत यानी गाने का अंदाज, लय और सुर आपकी गज़लों के अंदर मिलते हैं, आसानी से आप उसको लयबद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपका अंदाज होता है वो बातचीत का अंदाज होता है, जैसे किसी से हम कलाम है, किसी से बातचीत कर रहे हैं, इस तरह की गज़लें आपकी मिलती हैं, नज़में आपकी मिलती हैं। दिल नशीनी मिलती है और तहदारी मिलती है। तहदारी मतलब परतों वाली बातें मिलती है, यानी बात के पीछे बात छुपी हुई होती है। एक मफहूम आप बता रहे हैं, एक चीज आप कह रहे हैं, उसके पीछे कई माना आपकी गज़लों के अंदर, आपके अशार में पोशीदा रहते हैं। उनकी शायरी में तगज़्ज़ुल का एक नया रंग दिखाई देता है जो इस अहद के दूसरे शायरों के यहाँ नहीं मिलता। उर्दू गज़ल की नई आवाज़ 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हमेशा के लिए खामोश हो गई, यानी इस दारे फ़ानी से वो कूच कर गए, दुनिया से उनका इंतकाल हो गया। ये है आपकी ज़िंदगानी के हवाले से मुख्तसर मालूमात। तर्ज़ तहरीर, खुसूसियात कलाम, लिखने का तरीका, किस तरह से लिखते हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हमने मुताला किया है, समझा है इसको। अब आपको इनका ख्याल रखना है, तर्ज़ तहरीर के बारे में आपको ख्याल रखना है, आपको आपके नाम का ख्याल रखना है कि क्या आपका नाम था, तर्ज़ तहरीर क्या था, और कुछ किताबों के आपके नाम आपको मजमू वगैरह के इनके
याद रखने हैं। जैसे रुबाइयों का मजमुआ मैंने आपको रूप बताया, वो बहुत अहम है आपके लिए, आपको उसको याद रखना है। अब आते हैं हम हमारी गज़ल की तरफ। फिराक गोरखपुरी की गज़ल है, और जो तर्ज तहरीर आपने अभी पढ़ी है पीछे, जो मुताला कर कर आप आए हैं, उसी तर्ज तहरीर उसी अंदाज में लिखी हुई ये गज़ल है। 5 अशार यहाँ पर आपके लिए शामिल हैं। गज़ल की खास बात यह होती है कि गज़ल का हर शेर एक अलग माना रखता है, एक अलग मफहूम रखता है, आज़ादाना ख्याल रखता है और एक दूसरे से जुदा होता है। एक शेर का दूसरे शेर से कोई रब्त, कोई तसलसल, कोई रवानगी नहीं होती। एक शेर में जो कहानी है, जो मैसेज है, जो पैगाम है, वो वहीं तक महदूद है, वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा शेर एक अलग पैगाम लेकर आएगा, एक अलग किस्सा लेकर आएगा, एक कहानी लेकर आएगा, अलग मैसेज आपके लिए लेकर आएगा, और वो उसी के ऊपर खत्म हो जाएगा। जो अगला शेर होगा उसकी भी यही बात है, और उसके बाद वाले अशार की भी यही बातें हमें जहन में रखनी है। गज़ल के इसीलिए कोई एक उन्वान नहीं होता। गज़ल का पहला जो मिसरा होता है, सिर्फ उसे ही उन्वान के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। गज़ल के पहले शेर को मतला कहा जाता है। मतला इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ होते हैं, यानी यहां पर काफिया और रदीफ दोनों मिलेंगे सिर्फ पहले शेर के अंदर, तो पहला शेर मतला कहलाता है। रदीफ और काफिया क्या है? रदीफ, गजल के अंदर कुछ लफ्ज ऐसे आते हैं कि जो हू बहू उसी शक्ल में बार बार बदलते रहते हैं, बार बार आते रहते हैं। जैसे है के जो था, है के जो था, है के जो था, जो एक ही शक्ल में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार ऐसे के ऐसे ही आ रहे हैं, वो रदीफ कहलाते हैं। और वो मिसरे के आखिर में आते हैं। रदीफ सबसे आखिर में आता है और रदीफ से ठीक पहले काफी आता है। रदीफ से ठीक पहले काफिया आता है। अब रदीफ और काफिया में क्या फर्क है? काफिया की शक्ल बदल जाती है लेकिन काफिया की आवाज नहीं बदलती, एक जैसी आवाज आएगी। जबकि रदीफ की ना तो शक्ल बदलेगी और ना ही आवाज बदलेगी, एक ही शक्ल में वो बार बार आपके सामने आएगा। पहले शेर के दोनों मिसरों के अंदर रदीफ भी होता है और काफिया भी होता है। तो ये जो एक जैसा है के जो था, है के जो था, ये रदीफ है और पहले शेर के दोनों मिसरों में है। जबकि उसके बाद के जो अशार हैं उसके सिर्फ दूसरे मिसरे के अंदर आपको रदीफ मिलेगा, पहले मिसरे में नहीं है के जो था सिर्फ दूसरे मिसरे में है। उसके बाद के अशार में भी दूसरे मिसरे में आपको मिलेगा। दूसरे मिसरे में आपको यहां पर रदीफ मिलेगा। और काफिया भी दूसरे मिसरे के अंदर पहले शेर के जो मतला है, मतले के दोनों मिसरों के अंदर काफिया भी है और रदीफ भी है। और उसके बाद के दूसरे अशार के अंदर सिर्फ दूसरे मिसरे के अंदर आपको काफिया और रदीफ मिलेगा। रवा, निशा, गुजरा, समा, जिया और नजरा, धुआं, ये इसके काफिया हैं। तो काफिया और रदीफ को आपको समझ लेना है, अच्छे से इसको देखना है, पढ़ना है। इसके बाद हम गज़ल की बुलंदख्वानी करेंगे, गज़ल का पढ़ने का तरीका देखेंगे किस तरह से इसको पढ़ना है, और उसके बाद इसके हम माने समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम। फिर आप कहते हैं, आज भी काफिलाए इश्क़ रवा है के जो था, आज भी काफिलाए इश्क़ रवा है के जो था, वही मील और वही संग निशा है के जो था, वही मील वही संग निशा है के जो था। मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज जहां ने गुजरा है कि जो था, आज भी काफिलाए इश्क़ रवा है कि जो था। जुल्मतो नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, जुल्मतो नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था, आज भी एक धुंधलके का समा है जो था। और जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, जान दे बैठे थे एक बार भी हवस वाले भी, फिर वही मसलाए सूदो जिया है कि जो था, फिर वही मसलाए सूदो जिया है कि जो था। देख सकने की अलग बात मगर हुस्न तेरा, देख सकने की अलग बात मगर हुस्न तेरा, दौलते दीदाए साहिब नजरा है कि जो था, दौलते दीदाए साहिब नजरा है कि जो था।
اور تیرہ بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، تیرہ بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، شمع کے سر پر وہی آج دھواں ہے کہ جو تھا، شمع کے سر پہ وہی آج دھواں ہے کہ جو تھا۔ آخری شعر کے اندر شاعر اپنا نام استعمال کرتا ہے، جو تخلص میں نے بتایا تھا آپ کو۔ جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے وہ شعر مقطع کہلاتا ہے۔ پہلا شعر مطلع، اور وہ شعر جس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے وہ مقطع کہلائے گا۔ یہ آخری شعر، تیرہ بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، شمع کے سر پہ وہی آج دھواں ہے کہ جو تھا، تو یہاں پر فراق نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو اس شعر کو مقطع کہیں گے۔ اب اس کے ہم معنی دیکھیں گے کہ ان اشعار کے اندر شاعر کیا پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ آج بھی قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تھا، وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہے کہ جو تھا۔ قافلہ عشق، عشق کا قافلہ، اور رواں یعنی جاری، چل رہا ہے۔ سنگ نشاں، میل کا پتھر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ منزل ابھی کتنی دور ہے۔ سنگ نشاں، نشان والا سنگ، نشان والا سنگ، نشان والا پتھر۔ راستے کے اندر ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتھر اشارہ کرتا ہے کہ اجمیر اتنی دور رہ گیا ہے، جے پور اتنے کلومیٹر دور رہ گیا ہے، کوئی اور شہر جس کا نام آ رہا ہے کہ وہ شہر فلاں شہر اتنی دور رہ گیا ہے۔ وہی میل، میل دوری ناپنے کا پیمانہ ہوتا ہے، جیسے کلومیٹر ہوتا ہے ایسے میل ہوتا ہے۔ وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہے کہ جو تھا۔ یہاں پر شاعر کہنا چاہ رہے ہیں کہ عشق کا قافلہ آج بھی رواں ہے، آج بھی جاری ہے۔ آج بھی جاری کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی جاری تھا، یہاں پہلے کی بات پوشیدہ ہے، لیکن آج بھی کے نام سے پہلے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ آج بھی مطلب آج بھی کوئی کام ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام پہلے سے ہوتا آ رہا ہے۔ آج بھی قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تھا، کہ جو پہلے سے جاری تھا آج بھی وہ قافلہ عشق ابھی بھی چل رہا ہے۔ یعنی محبت کرنے والے آج بھی پوری روانگی کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ محبت کرتے آ رہے ہیں۔ دنیا کے کاروبار میں لگے رہنے والے پوری شدت کے ساتھ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا کا جو چلنا کا فطرت ہے وہ ابھی بھی اسی طرح رواں دواں ہے جس طرح وہ شروعات سے تھی۔ کوئی بھی کام نہیں بدلا ہے، ہر کام اپنے اسی روپ میں جواں ہے، اسی روپ میں رواں ہے جو شروع سے ہوتا آ رہا ہے۔ وہی میل اور وہی سنگ نشاں ہے کہ جو تھا، اور راستے میں جو منزلوں کے لیے وہ میل آتے ہیں، وہ سنگ نشان آتے ہیں، جو پتھر آتے ہیں، جو راستہ بتاتے ہیں، وہ آج بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہیں۔ اور آج بھی جب کوئی چلتا ہے، اس راستے پہ سفر کرتا ہے، تو اس کو راستہ بتانے کے لیے وہ جگہیں بھی موجود ہیں۔ یہاں پر شاعر زندگی کے سفر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ زندگی کا سفر جاری رہتا ہے، مسافر بدل جاتے ہیں۔ آج ہم ہیں تو کل ہماری جگہ کوئی اور ہوگا، کل آپ کی جگہ کوئی اور، اس کی جگہ کوئی اور یہاں پر آ جائے گا، لیکن یہ راستہ نہیں بدلے گا، وہ چلنے کا طریقہ نہیں بدلے گا، عشق کا قافلہ نہیں رکے گا۔ یوں ہی لوگ چلتے رہیں گے، یوں ہی محبت کا پیغام پھیلاتے رہیں گے۔ ہاں، مسافر بدلتے رہیں گے، ہم اور آپ بدل جائیں گے، ہماری جگہ کوئی اور آ جائے گا، لیکن یہ دنیا چلتی رہے گی۔ تو دنیا کے نظام کی طرف اس شعر میں اشارہ کیا ہے کہ دنیا چلتی رہے گی، کوئی رکاوٹ دنیا کے اندر نہیں آنے والی۔ کوئی کسی کے جانے سے، کسی ایک شخص کے مرنے کے بعد، انتقال کے بعد یہ دنیا نہیں رکتی ہے، اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے اور وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ تو جو نیا شخص آئے گا وہ نئے سرے سے دوبارہ اپنا سفر شروع کرے گا، اور سفر شروع کرے گا تو وہی راستہ اس کو ملے گا، وہی سفر کی دوری اس کو ملے گی، وہی سنگ نشان جو پتھر کے لگے ہوئے ہیں، سنگ میل جس کو کہتے ہیں، وہ اس کو وہی ملیں گے، تو جو اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ صرف مسافر بدل جاتے ہیں، چلنے والا بدل جائے گا، قافلہ اپنی جگہ پہ چلتا رہے گا۔ قافلہ عشق رواں ہے کہ جو تھا، جو عشق کا قافلہ جو چل رہا ہے وہ جیسے تھا ویسے ہی تھا۔ کہ جو تھا، یہ انہوں نے ردیف لیا ہے، اس ردیف سے شعر میں بہت خوبصورت معنی پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے سے پتہ چل رہا ہے کہ جو تھا وہ ویسے کے ویسے آج بھی اپنے پورے شباب کے اوپر، پورے روانی کے اوپر وہ چیزیں جاری ہیں۔ اگلا شعر ہے، منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں نے گزرا ہے کہ جو تھا۔ منزلیں گرد کی مانند اڑی جاتی ہیں، وہی انداز جہاں نے گزرا ہے کہ جو تھا۔ یہاں پر منزلیں کے معنی ہیں راستے میں آنے والی منزلیں۔ منزل ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مقام ہوتا ہے، لیکن انسان کے نفسیت ایسی ہوتی ہے، انسان کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کسی منزل کے اوپر، کسی ایک مقصد کے اوپر نہیں ٹکتا۔ ہم ایک منزل لے کے چلتے ہیں، ایک مقصد لے کے چلتے ہیں،
एक प्लान बनाकर चलते हैं कि हम इस जगह के ऊपर पहुंच जाएंगे, हमें यहां जाना है, हमें ये बनना है। जब हम उस जगह के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो मंजिल हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, वो मंजिल खत्म हो जाती है। अब हमारे लिए वो मंजिल जिसके ऊपर हम पहुंच चुके हैं वो मंजिल नहीं रही, बल्कि वो एक रास्ता बन गया है। अब हमारा नजर दूसरी मंजिल की तरफ रहती है और आगे की तरफ हम जाना चाहते हैं। तो ऐसी पता नहीं कितनी मंजिलें हमारे सामने आती हैं और मंजिलें खत्म हो जाती हैं हमारी चलने की फितरत की वजह से। तो वही अंदाज जहां गुजरा है कि जो था, तो ये हमारी फितरत है, ये हमारा तरीका है। अंदाज जहां गुजरा, जहान में हमारे जिंदगी गुजारने की फितरत है, ये तरीका है हमारा, और ये तरीका कभी भी हमारा नहीं बदलता। हम किसी एक चीज से सब्र नहीं करते, आगे उस चीज को हासिल करने के बाद उससे ज्यादा हासिल करने के लिए हम जद्दोजहद करना शुरू कर देते हैं, हम कोशिशें करना शुरू कर देते हैं, और ये हमारी जंग मुसलसल जारी रहती है, चलती ही रहती है। कई मंजिलें हमारे सामने आती हैं और हम उन मंजिलों को पार करते हैं। तो शायर कहते हैं मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ती जाती हैं। जिस तरह से रास्ता हमारे धूल उड़ती है, उसी तरह से हम मंजिलों को पार कर जाते हैं, धूल की मानिंद हमारे सामने से मंजिलें खत्म होती चली जाती हैं। और वही अंदाज जहां ने गुजरा है कि जो था, और जो मुश्किलें, जो परेशानियां हमें आती हैं वो अपनी जगह है, वो आती ही रहती हैं, उसमें से हम निकलते हुए अपनी मंजिलों की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं, और मंजिलें पे मंजिलें हम पार करते चले जाते हैं। ये इंसानी फितरत की तरफ इशारा किया है। लेकिन इंसान बहुत सारी मंजिलें पार करने के बाद भी सब्र नहीं करता, उसको सुकून नहीं आता, और वो और ज्यादा हासिल करने के लिए, और ज्यादा पाने के लिए जद्दोजहद करता रहता है, मुसलसल कोशिशें करता रहता है। जुल्मतो नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। जुल्मतो नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला। जुल्मत यानी अंधेरा होता है और नूर यानी उजाला होता है। जब शेर में दो ऐसे लफ्ज आए जिनके माने एक दूसरे के मुतजाद हों, एक दूसरे के उल्टे हों, जुल्मत का मुतजाद नूर है, तो शेर में एक सिनत पैदा होती है, उसे सिनत तजाद कहा जाता है। सिनतें अशार की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो यहां पर जुल्मत और नूर का इस्तेमाल हो रहा है। आपको ध्यान रखना है कि जहां पर दो चीजें एक जैसी हों, कि जो एक ही शेर में इस्तेमाल होनी चाहिए, दोनों मिसरों में इस्तेमाल हो सकती हैं, यहां तो एक ही मिसरे में दे दिया, अगर दोनों मिसरों में इस्तेमाल होती तब भी ये सिनत तजाद इस शेर में बन जाती। तो जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। जुल्मत यानी अंधेरा, तारीकी होती है, और धुंधलका यानी अंधेरा जिसमें हर शय धुंधली दिखाई देती है। तो धुंधली चीजें हमें कब दिखाई देती हैं? जब मौसम या माहौल हमारा साफ नहीं हो, किसी भी वजह से मौसम के अंदर खराबी हो जाती है, तो उस वक्त चीजें हमें धुंधली दिखाई देती हैं। और यहां पर शेर ने इशारा करा है जिंदगी की तरफ। जिंदगी में धुंधला होना मतलब जिंदगी के अंदर जो होने वाली चीजें हैं, जो जिंदगी में चल रहा है, वो साफ नहीं होना, उलझन बनी रहना, कश्मकश बनी रहना, ना तो अच्छाई की तरफ हम जा रहे हैं ना बुराई की तरफ जा रहे हैं, एक तरफ बीच में अटक के रहना, अपने खुद के मुस्तकबिल की तस्वीर साफ नहीं होना, उस धुंधलके की तरफ यहां पर इशारा किया है। जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला। अब यहां पर जो शेर में इशारा हो रहा है वो जुल्मत यानी हमारी जिंदगी के अंदर आने वाली दुख दर्द और परेशानियों की तरफ इशारा हो रहा है, हमारी जुस्तजू की तरफ, कोशिशों की तरफ इशारा हो रहा है। और नूर जो हमें इनामात मिलते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर अच्छाई आती है, खुशहाली जो आती है, उसकी तरफ इशारा होता है। तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करते रहते हैं, मोहब्बत के अंदर आगे बढ़ जाते हैं, और उनकी मोहब्बत के अंदर उनको कई तरह की अच्छाइयों का सामना भी करना पड़ता है, कई तरह की बुराइयों का सामना भी करना पड़ता है। यानी दुख दर्द और गम भी मोहब्बत के अंदर आते हैं और खुशियां भी मोहब्बत के अंदर आती हैं। तो यहां पर शायर उस कैफियत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि हमें अपनी मोहब्बत के अंदर ना तो दुख दर्द सही पूरी जिंदगी नसीब हुए, और ना ही हमें परेशानियां नसीब, खुशहाली नसीब हुई, ना तो हमें पूरी तरह से हम बर्बाद हुए, ना हम पूरी तरह से आबाद हुए। जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, ना तो हमें अंधेरा ही मिला मुकम्मल, और ना ही हमें उजाला ही मिला, ना हम उधर के हुए और ना हम इधर के हुए, बीच में हम रुक के रह गए। अब बीच में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि हमारी जिंदगी किस ओर जाने वाली है, हमारा मुस्तकबिल क्या रहने वाला है। तो हमारी जिंदगी की तस्वीर साफ नहीं हुई, तो इसे धुंधलका कहा है। वो कहते हैं आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था, जो पहले से धुंधलका बना हुआ था वही हमारी जिंदगी के अंदर है। कुछ भी तस्वीर हमारी जिंदगी की साफ नजर नहीं आ रही, ना तो हमें पता चल रहा कि हम मोहब्बत के अंदर कामयाब होंगे, हमारी मोहब्बत परवान चढ़ेगी, और ना ही ये पता चल रहा कि हमारा महबूब हमें छोड़कर जाएगा, हमारी मोहब्बत
किसी काम नहीं आने वाली। तो दोनों चीजें हमारे ऊपर वाज़ेह नहीं हो रही, दोनों चीजें हमारे ऊपर साफ नहीं हो रही, और इसी कश्मकश के अंदर हमारी जिंदगी पूरी होती चली जा रही है। जिंदगी का वक्त हमारा निकलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, किस ओर हमारे को लेकर, अपने आप को लेकर जाना चाहिए। तो जिंदगी की कश्मकश की तरफ यहां पर इशारा किया है। नाम मोहब्बत का है, लेकिन यह कश्मकश जिंदगी की है। जिंदगी की इंसान के अंदर जो भागदौड़ होती है, तो उसमें बता रहे हैं कि ना तो कामयाब हो रहे हैं पूरी तरह से, और ना ही नाकामयाब हो रहे हैं। कामयाब हो जाएं तो सुकून की सांस लें, बैठ जाएं एक तरफ कि हाँ भाई, अब हम इस काम के अंदर कामयाब हो गए हैं, अब इस काम के अंदर हम और आगे तरक्की कर सकते हैं। और ना ही हम नाकामयाब हो रहे हैं कि हम हार जाएं, नाकामयाब हो जाएं तो किसी दूसरी चीज की तैयारी करें। ना तो हम इधर हो रहे हैं ना उधर हो रहे हैं, एक ही चीज में फंसे हुए हैं, एक ही चीज में अटके हुए हैं। इस चीज को शायर ने इस शेर में कहा है कि जुल्मत और नूर में कुछ भी ना मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। जो धुंधलके का समा है, जो अंधेरा है, वही हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत बनकर रह गया है। सफाई कुछ नहीं हो रही, पता कुछ नहीं चल रहा कि क्या होने वाला है। जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसलाए सूदो जिया है कि जो था। फिर वही मसलाए सूदो जिया है कि जो था। मसलाए सूदो जिया, नफा और नुकसान का मसला, नफा और नुकसान का मसला पेश आ गया है। और कौन सा? कि जो था, जो हमेशा से था, वो मसला सूदो नुकसान का वो पेश आ गया है। जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी। हवस वाले, यहां पर बात हो रही है लालची लोगों की, जो कुछ भी काम करते हैं किसी लालच के सबब करते हैं। जब वो मोहब्बत करते हैं तो उनको अपने महबूब से, अपने आशिक से कुछ चाहिए होता है। तो जिनको मोहब्बत, सफाई वाली मोहब्बत नहीं है, उनकी मोहब्बत हवस कहलाती है। वो मोहब्बत नहीं होती, वो फिर हवस हो जाती है। सच्ची मोहब्बत ये है कि जो बेलौस हो, बगैर किसी लालच के की जाए। आपको अपने महबूब से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना, कोई लालच नहीं है, कोई आपकी ख्वाहिश नहीं है, कोई आपकी चाहत नहीं है, फिर आप मोहब्बत करते हो तो वो मोहब्बत आपकी बेलौस मोहब्बत है, बगैर लालच के की गई मोहब्बत। लेकिन अगर आपकी मोहब्बत में इतना सा भी जर्रा बराबर भी ये शय निकलता है, ये अंश निकलता है कि आपको कुछ चीज अपने महबूब से चाहिए, कुछ चाहत आप अपने महबूब से रखते हो, कुछ तमन्ना रखते हो, कुछ आरजू रखते हो, कुछ ख्वाहिश रखते हो कि महबूब तुम्हें ये दे दे, आशिक तुम्हें ये दे दे, माशूक तुम्हें ये दे दे, तो फिर वो मोहब्बत तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, वो मोहब्बत हवस है। उस मोहब्बत को शायर हवस करार दे रहे हैं और कहते हैं जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी। अब कई लोग हवस के लिए भी अपनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपने आप को दिखाते हैं कि जैसे सच्चे आशिक हों। अपने आप को वो सच्चे आशिक होते नहीं है, लेकिन अपने आप को सच्चा आशिक वो जाहिर करते हैं। तरह तरह की बातें बनाते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं, तरह तरह से हम अपने महबूब को खुश करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सच्चे आशिक जैसा बनने की वो कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उनके दिखावे दिखावे के अंदर जब उनकी जान पे बनाती है तो अपने महबूब को दिखाने के लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, दिखाने के लिए, खाली ऐसे ही अपनी जान कुर्बान कर दी। तो वो हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है। कोई कोई हवस वाला ऐसा होता है जो अपने महबूब के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दे या अपने आप को न्यौछावर कर दे, अपने आप को बिछा दे उसकी राह के अंदर। हमेशा सब नहीं बिछाते। तो इसके लिए शायर कहते हैं जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी। सिर्फ एक बार या कुछ बार किसी हवस वाले ने अपनी जान दी होगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे ही अपनी जान कुर्बान करने लग गए, सारे ही बेलौस हो गए, सभी ने लालच छोड़ दिया। बहुत सारे लोग मोहब्बत करते हैं, बहुत सारे लोग लालच के बायस मोहब्बत करते हैं, कुछ ना कुछ अपने महबूब से चाहिए होता है उन्हें। किसी को दौलत से प्यार होता है, किसी को उसके तन से प्यार होता है, किसी को उससे कुछ फायदा पहुंचाना होता है, कुछ ना कुछ वो चीजें मांगते रहते हैं। तो वो हवस के पुजारी होते हैं सारे के सारे। अब किसी एक हवस के पुजारी ने अगर अपनी जान दे दी, और वजह मैंने बता दी कि दिखावे दिखावे के अंदर अपनी जान दे दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही सच्ची मोहब्बत करने लग गए या उसकी मोहब्बत सच्ची थी। मोहब्बत उसकी सच्ची नहीं थी, उसने सिर्फ दिखावे में अपनी जान दे दी, दिखावे में खुद को कुर्बान कर दिया। फिर वही मसला सूदो जिया है कि जो था। तो यहां पर नफा नुकसान का मसला वो का वही है, उसने जान दे दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे ईमानदार हो गए। वो नुकसान और फायदे का जो मसला है, वो जो आशिक है, कौन सा, जो फर्जी आशिक है, जो दिखावे के लिए झूठी मोहब्बत कर रहा है,
لالچ کے اندر محبت کر رہا ہے تو وہ محبت کرنے سے پہلے اپنا نفع اور نقصان دیکھتا ہے. سود و زیاں، نفع اور نقصان، وہ اپنا نفع نقصان دیکھتا ہے کہ کس چیز میں مجھے فائدہ ہے اور کس چیز میں مجھے نقصان ہے. تو کئی بار اگر اس کی جان چلی گئی، کسی ایک کی جان چلی بھی گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے اس کے اندر سے ایماندار ہو گئے، سارے سچے عاشق ہو گئے. وہ مسئلہ تو جہاں کے جگہ ہی ہے. پھر وہی مسئلہ سود و زیاں ہے کہ جو تھا. جو لالچی لوگوں کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز، ہر کام کرنے سے پہلے اپنا فائدہ اور اپنا نقصان دیکھتے ہیں، سچی محبت نہیں ہوتی ان کی، وہ مسئلہ ابھی بھی برقرار ہے. ابھی بھی ان کی سچی محبت نہیں ہے، وہ اپنا نفع اور نقصان دیکھ کر اپنا کام آگے بڑھاتے ہیں. تو یہاں پر شاعر نے سچے عشق کی کیفیت بتائی کہ سچا عشق وہ نہیں ہے جو کسی کے اندر لالچ دیکھے، کوئی خواہش اپنے محبوب سے رکھے، کچھ لینا چاہے، کچھ بدلہ چاہے کہ میں محبت کروں گا، میں کچھ دوں گا تو مجھے بھی یہ چاہیے. تو پھر وہ سچا عشق نہیں ہے. سچا عشق بے لوث ہے. سچا عشق محبوب سے کچھ نہیں چاہتا، کچھ بھی نہیں مانگتا، کچھ بھی فائدہ نہیں دیکھتا اپنا، چاہے خود برباد ہو جائے، خود ختم ہو جائے، خود قربان ہو جائے، وہ اپنے محبوب سے کبھی بھی اپنا فائدہ نہیں چاہتا. اس طرح کے سچے عشق کی کیفیت یہاں پر فراق گورکھپوری نے بڑی خوبصورتی سے بیان کی ہے. آگے آتے ہیں. دیکھ سکنے کی الگ بات مگر حسن تیرا، دولت دیدہ صاحب نظرہ ہے کہ جو تھا. یہ اس طرح سے کئی لفظوں کو ملا کر ایک مرکب بنا لیا جاتا ہے. یہ ترکیبیں ہیں، یہ ترکیبیں اشعار میں استعمال ہوتی ہیں. جیسے پہلے ابھی ہمارے ایک ترکیب آئی تھی، مسئلہ سود و زیاں، سود و زیاں کا مسئلہ، سود و زیاں کا معاملہ، نفع و نقصان کا معاملہ. تو یہ ترکیبیں ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ اشعار کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، شاعری کو خوبصورت بنا دیتی ہیں ترکیبیں. تو ہمارا شعر ہے، دیکھ سکنے کی الگ بات مگر حسن تیرا، دولت دیدہ صاحب نظراں ہے کہ جو تھا. تو یہاں پر شاعر کہتے ہیں کہ دیکھ سکنا تو الگ بات ہے کہ ہم تیرے حسن کو دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن تیرا حسن کیا ہے؟ تیرا حسن دولت ہے. کس کی دولت ہے؟ دیدہ صاحب نظراں، صاحب نظر کے دیکھنے لائق، صاحب نظروں کا سرمایہ ہے. یعنی جو دیکھنے کی قوت رکھتا ہے، جو دیکھنے کا مال رکھتا ہے، جو دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی تیرا حسن دیکھ سکتا ہے. تیرا حسن دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. عام آدمی تیرے حسن کے نظارے نہیں کر سکتا، وہی کر سکتا ہے جو صاحب نظر ہو، جو اہل نظر ہو. اب یہاں پر شاعر جو اس کے شعر کے حقیقی معنی ہیں وہ حقیقی رب کے معنی ہو رہے ہیں. رب کے جلوے ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں، ہر طرف قدرت کے جلوے پھیلے ہوئے ہیں. لیکن وہ جلوے ہر انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ اہل نظر دیکھتے ہیں، اہل ذوق دیکھتے ہیں. وہ جلوے وہ دیکھتے ہیں جو اپنے رب سے محبت رکھتے ہیں، جن کو رب نے صاحب نظر بنایا ہے، جس کو دیکھنے کی قوت عطا کرتی ہے، قوت کی ہے، جس کو دیکھنے کی قوت مل جاتی ہے. وہ پھر وہ نظارے کرتا ہے کہ جو عام آنکھوں کو دیکھنا مشکل ہے. عام آنکھوں سے عام انسان جو چیز نہیں دیکھ سکتے وہ اہل نظر دیکھتے ہیں. وہ جلوے، اپنے رب کے جلوے اہل نظر دیکھتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہے کہ دیکھ سکنے کی الگ بات، کہ تیرے جلوے، تجھے دیکھنے کی بات الگ ہے کہ ہم دیکھنے چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. لیکن تیرا حسن دیکھنا، تیرے حسن کا دیدار کرنا، وہ کسی عام آنکھوں کی بس کی بات نہیں ہے. عام آنکھوں سے تیرے حسن کے جلوے نہیں کیے جا سکتے. تیرے حسن کے جلوے کے لیے خاص آنکھیں چاہیے، خاص طاقت چاہیے، جس کے بدولت تیری آنکھوں کے جلوے، تیرے حسن کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں. تو یہاں پر دولت دیدہ صاحب نظرہ، باشعور عقل مند لوگوں کی آنکھوں کا سرمایہ. باشعور وہی اہل نظر جو اپنے رب کی حقیقتوں کو جانتے ہیں، سچائیوں کو جانتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے. وہ اہل نظر ہوتے ہیں اور وہ رب کے خاص بندے ہوتے ہیں. خاص کرم رب کا ان کے اوپر ہوتا ہے. وہ اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، اس کے جلووں کو دیکھتے ہیں، اس کے کرشموں کو دیکھتے ہیں، قدرت کے جلووں کو وہ لوگ دیکھتے ہیں. تو وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ صاحب اہل نظر ہیں، وہ لوگ صاحب نظر ہیں. تو ہر کسی کے دیکھنے کی بات نہیں ہے حسن یعنی خوبصورتی. اگلا شعر پہ آتے ہیں. تیرا وقتی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، دل سوزاں یعنی دل کی جلن، دل کا درد، جلتا ہوا دل، تڑپتا ہوا دل، پگھلتا ہوا دل. سوز دل کے پگھلنے کی، دل کے جلنے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے سوز و گداز. تو تیرا بختی نہیں جاتی دل سوزاں کی فراق، شمع کے سر پر وہی آج دھواں ہے کہ جو تھا. تیرا بختی یعنی
बदनसीबी, अंधेरे में रहना, अंधेरी जिंदगी, जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही नहीं है, हर चीज बुरी होती रहती है, हर चीज के अंदर बुराई मिलती रहती है, खराबी मिलती रहती है, उसे तीरा बख्ती कहा गया है। तो तीरा बख्ती नहीं जाती दिल सोजा की फिराक, तो फिराक यहां पर अपनी किस्मत को कोस रहे हैं, किस्मत को कोसते हुए कह रहे हैं कि फिराक हमारी किस्मत के अंदर बदनसीबी लिखी हुई है, हमारी किस्मत के अंदर जलना लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में तड़पना लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में खुशियां नहीं है। बदनसीबी हमारा साथ पकड़े हुए, हमारा पीछा पकड़े हुए है, जो इस तड़पते हुए दिल को, इस जलते हुए दिल को छोड़ना ही नहीं चाहती। ये दिल की तड़पन, दिल की जलन ही हमारी किस्मत बन गई है। ये दिल के पिघलाहट कि जिसकी वजह से हमेशा हम दर्द में मुब्तला रहते हैं। यहां पर दर्द मोहब्बत का दर्द है, इश्क का दर्द है। अब किसकी मोहब्बत है? वो फिराक जाने की किसकी मोहब्बत है? यहां पर हम माने लगा सकते हैं कि ये इश्क हकीकी की तड़प है, इश्क हकीकी की तड़प है, दर्द की इश्क की तड़प है। जब किसी को इश्क हो जाता है किसी से, तो उसकी दिल में हमेशा दर्द रहता है, बेचैनी रहती है, न रातों को नींद आती है, न दिल में चैन मिलता है। तो उस चीज को, चैन नहीं आने को, तड़पने को यहां पर बदनसीबी कहा गया है। और ये रब का अगर तसव्वुर यहां पर करें कि जिसको अपने रब से लो लगा ली जिसने, तो उसका दिल तड़पेगा, तो उसकी बदनसीबी, उसकी तीरा बख्ती उसके लिए खुशनसीबी में बदल जाएगी। यहां पर शायर इसको बदनसीबी कह रहे हैं कि हमारे नसीब में ये दिल की तड़न, दिल की तड़प, दिल की जलन ही रह गई है, ये परेशानियां, ये घुटन ही रह गई है, हमारी किस्मत में आराम नहीं रह गया है। फिर अपनी हालत की मुशाबिहत ये शम्मा से कर रहे हैं कि हमारा दिल इस तरह से जलता रहता है कि जिस तरह से शम्मा जलती रहती है। शम्मा जलती है तो उसके सर से धुआं निकलता है। शम्मा यानी रोशनी, मोमबत्ती। दिया जब जलता है, मोमबत्ती जब जलती है, रोशनी जब जलती है, तो उसके ऊपर से जलने की वजह से धुआं निकलता है। तो वो जलने की कैफियत को शायर कह रहे हैं कि उसका भी दिल जलता है, इसलिए उसके सर से धुआं निकलता है। कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं कि उसके दिल जलने की वजह से, जिस तरह से मेरा दिल जलता है, मेरी बदकिस्मती है, इसी तरह से वो रोशनाई, वो शम्मा जलती है तो उसकी बदकिस्मती है, और बदकिस्मती की वजह से हम दोनों के सर से धुआं निकलता रहता है, हम दोनों की कैफियत से धुआं निकलता रहता है। तो यहां पर शायर दिल जलने की कैफियत को बयान कर रहे हैं, दिल के दर्द को बयान कर रहे हैं। तीरा बख्ती नहीं जाती दिल सोजा की फिराक, शमा के सर पर आज वही धुआं है कि जो था। जो हमेशा से शमा जलती रही है, उसी तरह से हमेशा से ही मेरा दिल जलता रहा है, मेरा दिल तड़पता रहा है, मेरे दिल को किसी भी हालत में सुकून नहीं मिला है, इत्मीनान नहीं मिला है। ये हमारी गज़ल के मफहूम हमने पढ़ा, इसकी तशरीह की। जो मैंने तशरीह आपको करी है आपके सामने, जो खुलासा आपके सामने किया है, इसको आपने याद रखना है। अब आपकी किताब में जो खुलासा इसका दे रखा है, हम उसका मुताला करेंगे, उसको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि शायर इस गज़ल के ज़रिए, इनके अशार के ज़रिए हमें क्या पैगाम देना चाहता है। आज भी काफिलाए इश्क रवां है कि जो था, वही मील और वही संग निशां है कि जो था। तशरीह है, ये शेर राह इश्क की परेशानियों और तकलीफ़ों को हमारे पेश नज़र लाता है। इश्क की राह के अंदर बहुत परेशानियां हैं, बहुत जिल्लत उठानी पड़ती है, बहुत सदमे और हादसों का सामना करना पड़ता है। इश्क आसान नहीं है, इश्क बहुत मुश्किल है। रदीफ है कि जो था, ये जो रदीफ दिख रहा है ना आपको, इसके बारे में बात कर रहे हैं। रदीफ है कि जो था हाल को माजी से जोड़ने का काम करती है। यानी आज जो है कल वो था, है कि जो था जैसा कल था वैसा ही आज है। वो हाल को जो अभी चल रहा है उसको माजी से जोड़ रहा है, माजी गुजरा हुआ जमाना, और हाल जो जमाना चल रहा है, तो हाल को माजी से जोड़ रहे हैं। काफिला इश्क जैसे माजी में रवां दवां था, वैसे ही हाल में भी उसका सिलसिला जारी है। वो सिलसिला, काफिला चलता ही रहता है, दुनिया चलती ही रहती है, दुनिया रुकने वाली नहीं है। यानी इश्क करने वाले माजी में जिस तरह की परेशानियों और तकलीफों में मुब्तला थे, आज भी है, और ये काफिला गालिबन मुस्तकबिल में भी यूं ही चलता रहेगा। दूसरे मिसरे में मील और संग निशा राह इश्क के मुख्तलिफ पड़ाव हैं, और ये भी माजी की तरह ही हैं। यानी काफिला इश्क का रास्ता माजी में बदला था, ना हाल में तब्दील हुआ है। वो जो मुश्किलें, वो जो परेशानियां उस रास्ते के ऊपर मौजूद हैं, वो पहले भी थी, वो आज भी हैं। पहले भी आशिकों को इसी तरह की मुश्किलों और परेशानी को सामना करना पड़ता था, इसी तरह जद्दोजहद करना पड़ता था, इसी तरह लोगों से लड़ना पड़ता था, और आज भी सच्चे आशिकों के लिए कहीं सुकून नहीं है। वही परेशानियां, वही मुश्किलात का सामना उनको आज भी करना पड़ता है।
तो जो था आज भी वो वैसे के वैसे ही है। इश्क में आने वाली परेशानी, दुनिया में आने वाली परेशानियों का यहां पर मुजाहिरा किया गया, बताया गया है। अगले शेर की तरफ आते हैं। मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज जहां गुजरा है कि जो था। इस शेर में भी वक्त के गुजरते रहने और दुनिया में होने वाले वाकयात और हादसात की तरफ इशारा किया है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा वक्त गुजरता रहता है, वक्त चलता रहता है, और वक्त के साथ इंसान अपनी मंजिलें हासिल करता रहता है और अगली मंजिलों की तरफ वो बढ़ता चला जाता है। तो मंजिलें गर्द की मानिंद, जैसे धूल उड़ती है, ऐसे मंजिलें भी रास्ते की धूल की तरह खत्म होती जाती हैं और इंसान चलता रहता है, तरक्की करता रहता है। शेर में इस्तेमाल किया गया मंजिलें लफ्ज पर गौर करें। दूसरे मिसरे में अंदाज़े जहां ने गुजरा की तरकीब पर भी गौर करें। आप महसूस करते सकते हैं कि मंजिल के आम मानों से हटकर इस शेर में मंजिल को मकसद के मानी में इस्तेमाल किया गया है। यानी जो हम करते हैं, मकसद बनाते हैं, वो मकसद ही हमारा मंजिल रहता है और कुछ वक्त बाद हम उसमें मकसद को हासिल कर लेते हैं और कोई दूसरा मकसद हमें मिल जाता है, कोई दूसरी मंजिल हमें मिल जाती है, हम उसको पाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। दुनिया में आने वाले हर आदमी के जहन में कोई ना कोई मकसद रहा है, यानी किसी न किसी मंजिल को पाने की धुन हर दौर के इंसान की फितरत रही है। और अगर आप गौर करें तो कोई मंजिल ऐसी होती ही नहीं जिसे आखिरी मंजिल कहा जाए। आप कोई एक मंजिल अपने लिए बना लें और फिर कुछ वक्त बाद आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो मंजिल जो आपने बनाई है वो आप हासिल कर चुके हो। और जब आप वो मंजिल हासिल कर लोगे तो उसके बाद आपके लिए दूसरी मंजिलें सामने आ जाएंगी, आपके जहन में दूसरी चीज़ आएंगी कि अब मुझे वो चीज़ हासिल करनी चाहिए, वो बनने की कोशिश करना चाहिए। फिर आप उसके लिए जद्दोजहद करना शुरू कर दोगे, उसके लिए कोशिश करना शुरू कर दोगे, भागना शुरू कर दोगे और आखिर में एक दिन आप उसको भी पालोगे। तो ऐसी कोई मंजिल है ही नहीं जो आखिरी मंजिल कही जा सके। मंजिल बदलती रहती है, मंजिलें आगे आती रहती हैं। एक उम्मीद की पूरी होने के बाद की उम्मीदों के ऊपर बाद नई उम्मीदों की नई कोपल वहीं से फूट जाती है और फिर हम उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। यानी तलाश की कोई हद मुकर्रर नहीं है। दुनिया पुरानी होकर नई है, उसका मिजाज हमेशा से यही रहा है और आइंदा भी यही रहेगा। बदलाव हमारे मिजाज में रहा है, हमारे फितरत में रहा है और हम जैसे ही हासिल करते हैं उसके बाद दूसरी चीज को हासिल करने के लिए हम कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जिसको हम 99 का फेर भी कहते हैं कि 100 करने के लिए हम पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन 100 नहीं कर पाते और पता चलता है कि हमारी जिंदगी इसी फेर में, इसी भाग दौड़ के अंदर खत्म हो जाती है। जुल्मतो नूर में कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक एक धुंधलके का समा है कि जो था। इस शेर में इश्क की कम मायगी का जिक्र उम्दगी से किया गया है। कम मायगी, कम होना, जो जिंदगी के अंदर कम मिलता है इश्क की वजह से। इश्क में इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है, ऐसी चीजें मिलती है कि जो उसकी जिंदगी को पीछे लेकर जाती हैं, उसको कामयाबी से पीछे की तरफ लेकर जाती हैं। जुल्मत और नूर यहां पर अंधेरा और रोशनी से कई इस्तिआराती माने अखज़ किए जा सकते हैं। जुल्मत यानी अंधेरा, बदनसीबी, जुदाई, मायूसी, और नूर यानी रोशनी, खुशबख्ती, क़र्ब महबूब और उम्मीद के मानवी अशार रखते हैं। शायर इन दोनों मुख्तलिफ और मुतज़ाद कैफियत की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि जज्बा इश्क को इन दोनों कैफियत से कुछ हासिल ना हो सका। इश्क को ना तो मुकम्मल कामयाबी हासिल हुई, ना मुकम्मल ही नाकामयाबी हासिल हुई, वो दोनों के अंदर उलझ के रह गया है, सफाई उसके जहन के अंदर नहीं हुई। ना मुकम्मल जुल्मत यानी जुदाई और ना ही मुकम्मल नूर यानी क़र्ब महबूब मिला है। यानी जज्बा इश्क एक अनोखा जज्बा है कि यहाँ बेक वक्त आशिक उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों के बीच में फंसा रहता है, दोनों की कैफियत में मुब्तला रहता है। और ये कैफियत धुंधलके की मुतरादिफ है कि जहां जुल्मत और नूर यकजा हो जाते हैं। जो था कि रदीफ इस कैफियत को माजी से जोड़कर देती है कि ज़माने गुजर गए मगर इश्क की ये कैफियत आज भी जो कि तो मौजूद है। हमेशा से आशिकों का यही हाल है, इश्क करने वालों का यही हाल है कि उम्मीद और नाउम्मीदी दोनों एक साथ उनकी ज़िंदगी में है। ना तो पूरी तरह उनकी उम्मीद को पार पाते हैं और ना ही पूरी तरह वो नाउम्मीद होते हैं। इसी भंवर में, इसी जाल के अंदर वो फंसे रहते हैं, इसी में उनकी जिंदगी पूरी होती है। जान दे बैठे थे एक बार हवस वाले भी, फिर वही मसला सूदो जिया है कि जो था। इश्क के साथ हवस का नाम अक्सर
ये कहकर लिया जाता है कि इश्क या मोहब्बत में अगर हवस हो तो इश्क इश्क नहीं, बोल हवसी हो जाती है। इश्क में हवस की कोई जगह नहीं है। अगर आपके इश्क के अंदर लालच है तो फिर वो आपका इश्क है ही नहीं, या तो हवस हो जाएगी या फिर आपका इश्क होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर इश्क है तो फिर हवस नहीं होगी, और हवस है तो फिर वो इश्क नहीं होगा, वो दिखावटी बातें होंगी, फिर वो हवस ही होगी। यानी जिस मोहब्बत में गरज हो, ख्वाहिश हो, वो झूठा इश्क है। इस शेर में हवस वालों की जान देने का जिक्र किया गया है। यानी कभी कभी कोई वही झूठी बातों के लिए, बनावटी बातों के लिए जान दे भी दे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हवस को इश्क कहा जा सकता है। हवस के अंदर तो वही नुकसान और फायदे का सौदा है। जो हवस वाला है वो नुकसान भी देखेगा वक्त पे अपना, वो अपना फायदा भी देखेगा। जबकि इश्क के अंदर नफा और नुकसान का कोई मोल नहीं है, ना नफा है ना नुकसान है। इश्क के अंदर कुछ सोचता ही नहीं है आशिक, उसको कुछ होश ही नहीं रहता, इस तरह से इश्क में डूब जाता है। यानी इश्क एक ऐसा जज्बा है कि कभी कभी अहले हवस भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। चलिए माना कि अगर किसी अहले हवस ने इश्क में जान गंवा भी दी तो क्या एक आध मिसाल से हवस की फितरत बदल जाएगी? क्या वो सच्चे आशिक बन जाएंगे? कभी नहीं। अहले हवस की फितरत तो नफा और नुकसान पर निगाह रखती है, और आज भी हवस वालों की फितरत वही है, जबकि आशिक आज भी नफा और नुकसान से बाला तरीन है। सच्चा जो इश्क होगा उसके अंदर नफा और नुकसान का सौदा नहीं होगा, उसमें नफा नुकसान की बात ही नहीं होगी। वो तो इश्क होगा, उसमें आशिक व माशूक होगा, आशिक व महबूब होगा, वहां नफा नुकसान नहीं होगा। अगर नफा नुकसान की बात आ गई तो फिर इश्क नहीं रहेगा, फिर वो हवस रहेगी। देख सकने की अलग बात मगर हुस्न तेरा, दौलते दीदाए साहिब नजरा है कि जो था। इस शेर में महबूब के हुस्न को मखसूस लोगों की दौलत कहा गया है। यानी जो अहले नजर हैं, जो देख सकने की ताकत रखते हैं, वही उसको हुस्न का मजारा ले सकते हैं, हुस्न का नजारा कर सकते हैं। कहा गया है कि हुस्न का दीदार करना आम लोगों के बस का रोग नहीं। हाँ, वो हुस्न की जाहिरी कैफियत से लुत्फ अंदोज तो हो सकते हैं, मगर हुस्न के जौहर से ऐसे लोग महरूम ही रहते हैं। तेरा हुस्न कहकर उसे आम से खास बना दिया है। यह हुस्न हकीकी भी हो सकता है कि जिसके जलवों की कसरत होने के बावजूद भी आम नजर रखने वाले उसके दीदा से महरूम ही रहते हैं। यानी जिनके नजरें सही नहीं है, सच्ची नजरें नहीं है, पाक नजरें नहीं है, जो अहले नजर नहीं है, तो फिर वो सच्चे हकीकी रब के जलवे नहीं देख सकते। उनको ये रहेगा कि हाँ, रब ने ये चीजें बनाई है, कायनात में जो जो चीजें नजर आ रही हैं ये हैं, लेकिन जो हकीकत के जलवे होते हैं, जो कुदरती रब्बानी के जलवे होते हैं, वो जलवे उसको नजर नहीं आएंगे। उसके लिए तो अहले नजर चाहिए, अहले ज़ौक़ चाहिए। चुनांचे हुस्न की दौलत मखसूस लोगों के लिए है, और ये मखसूस लोग साहिब नजरा हैं, यानी हकीकतों का अदराक रखने वाले, अदराक यानी समझ, फहम, और हुस्न को पहचानने वाले। यानी हुस्न हमेशा ही अहले नजर की आंखों की दौलत रहा है। उसके दीद आम नहीं खास है, और इस सिलसिला माजी से हाल तक यूं ही चलता रहा है। शुरू से हुस्न का सही मानों में दीदार वही कर सकते हैं जो हुस्न की परख रखते हों, हुस्न को समझते हों। अगर दुनियावी मानों में लेके जाएं तो हुस्न के पारखी लोगों की बात हो रही है, और अगर हकीकी मानों में लिया जाए तो यहाँ पर रब के जलवों का हुस्न के बारे में बात हो रही है। उसके लिए फिर अहले नजर चाहिए। तो दोनों माने मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तीरा बख्ती नहीं जाती दिले सोजा की फिराक, शम्मा के सर पे वही आज धुआं है कि जो था। तीरा बख्ती का मतलब होता है बदनसीबी। शायर यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी बदनसीबी उनका दिल नहीं साथ नहीं छोड़ती, उनका दिल हमेशा जलता रहता है, चुभन हमेशा उनकी दिल में बनी रहती है, खलिश हमेशा बनी रहती है, और वो इस तरह से बनी रहती है कि जैसे शम्मा जलने के बाइस सर से धुआं निकालती रहती है, उसी तरह इनकी आंखों से आंसू जारी रहते हैं, इनके भी आंखें नम रहती हैं। इस शेर में दिल सोजाएं यानी जलते हुए दिल को तीरा बख्ती बदनसीबी पर कफे अफसोस मिला है। कहते हैं कि हमारे दिल सोजा, दिल की जलन इश्क में नाकामी से भी इबारत हो सकती है, और गम अंदोदा से भी। बावजूद इसके कि जल उठा है, और जल उठने के सबब उससे रोशनी फूटी जाती है, मगर हुआ यह है कि उसकी तीरा बख्ती, तीरा के माने अंधेरे के हैं, कम होने के बजाय और बढ़ गई है। दूसरे मिसरे में दिल को शमा से तशबीह देते हुए ये मिसाल दी गई है कि जिस तरह शमा के जलने पर उसके सर पर धुआं उठता है, अंधेरा रहता है, इसी तरह हमारे दिल में दिल सोजा की बदनसीबी खत्म नहीं होती।
जिस तरह से शमा जलती रहती है उसी तरह से शायर का दिल भी जलता रहता है। अब जलने की वजह यहां पर इन्होंने बयान कर दी है, दिल सोजा यानी दिल की जलन, दिल की चुभन। तो दिल की जलन कब होती है? जब इंसान मोहब्बत में मुब्तिला हो जाए, इश्क में मुब्तिला हो जाए, तब उसको कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं चैन नहीं मिलता। वो तड़पता रहता है, बेचैन रहता है और सुकून ढूंढने की कोशिश करता रहता है, लेकिन कहीं भी उसे सुकून नहीं मिलता। आशिक का सुकून सिर्फ माशूक के पास है। अगर उसका माशूक उसके पास रहेगा, उसका हबीब उसके पास रहेगा, तो उसके दिल को सुकून मिलेगा, वगरना उसका दिल यूं ही तड़पता और जलता रहेगा, जिस तरह से शम्मा जलती रहती है, शम्मा के सर से धुआं निकलता रहता है। यहाँ पर यह गज़ल हमारी मुकम्मल हो गई है। गज़ल के माने मैंने आपको समझाए, तशरीह हमने की है, इसको आपको समझना है। और अगर आपसे इम्तिहानों में पूछा जाए तो बआसानी इसकी तशरीह आपको, अशार की तशरीह आपको लिख देनी है। अशार के माने, अशार का खुलासा आपसे कराया जाएगा। जब नज़्म होती है तो पूरी नज़्म का खुलासा किया जाता है, और गज़ल होती है तो कुछ अशार देकर आपको उन अशार का मफ़हूम पता किया जाता है कि आपको मालूम है या नहीं है। शायर के हवाले से भी जो मालूमात हमने हासिल की है उसे भी आपको याद रखना है, और कोशिश करना है कि फिराक गोरखपुरी की कोई और गज़ल आपको मिल जाए तो आप उसको भी पढ़ें, ताकि आप फ़न से मुतारुफ़ हो सकें, फ़न से आप जान सकें कि किस तरह की गज़लें फिराक गोरखपुरी की होती है। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले सबक के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा। अलविदा।